Yeah. ChatGPT. Nowadays, Yeah. Now there is a big issue. If you are creating content using ChatGPT, no sir. जो हमारे गेस्ट दिलीप नूरे जी का स्वागत करेंगे. वेल, if I wanted to introduce Mr. Dilip Nune, he is one of the most, he is running one of the most premium visa consultancy in Hyderabad, who helped more than 5,000 students to complete their overseas study dream, right? And it is my great privilege that I am working with him since last 5 years. So at the same time, he is coming from OBC community, but I don't prefer to raise the word community here because I don't like to get into the community term. We all are human and we all have the right to enhance our skill and get the best out of the society. So विकास जी, मैं आपको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा. प्लीज आप दिलीप सर का स्वागत कीजिए. In English, Hindi se, but just I'll continue things on both the languages. Okay, so as they have already introduced me, I'm into visa consultancy. So to extend that, what you people need to know about me is I'm an Australian migration lawyer and also New Zealand migration lawyer. So I'm having my company in Australia and New Zealand, and that company is now running their show in India. So from last 15 years, I am sending people on all sorts of areas, right from education, work, apprenticeships, permanent residency, and everything. So majorly, I try to help people on identifying the right career, what career you have to take for any of the countries to in order to be successful in that country. If you see, there are a lot of professions in this world, but a lot of many people don't know which professions they need to take. Many of them are very much tuned to go to engineering or medicine, but there are a lot of professions which we advise them where they can actually earn more than what they can earn in engineering and medicine, and where there is a very little competition. So we advise them on that. Even if you're talking about medical professions, we have a lot of other professions like audiologist or speech therapist or many things which we advise them, which is on a very high demand overseas. So we actually educate them on that. So when I also educate them on digital platforms, there are so many people these days taking IT industry. They are always taking bachelors of IT. So how many of them are able to really settle in IT is very few. But when you are looking into somebody which having arts background, even technical background, and they are doing digital marketing or they are doing designing for websites, designing graphical designs, or they are doing any designs for 3D animation, they are actually earning more than what a normal IT engineer is earning, exclusively in overseas countries. The reason why I am saying, people in overseas countries, they are not techno savvy, they are more management savvy. So they give all their works to people from Asian countries, and that is the main area where we are technically sound. Indians are technically sound, and also Indians are very good in arts, and they create very good picturistic output solutions. So when somebody is taking a digital platform related courses, they don't need to be in that country. They can sit anywhere in this world. They can deliver that services to those companies in foreign countries. Exclusively, I helped a lot of people, my clients, who are currently providing services to Australian companies. They are English speaking Australian, white Australian companies, Indian companies, and also there are some companies from Europe. They are taking their services
from Indian digital marketing and graphic designing companies, because whatever they are paying in dollars, and second thing is they don't have people to do the services what we are having very good in. So specifically, if you are able to market yourself properly, then world is huge, lot of opportunities are there. Specifically if you are learning communication as well as you are also learning how to create and develop, then I think yes, you have a lot of scope overseas. Do my company's digital marketing as well as web designing, graphic designing, and all these areas. So if you are seeing one single person is giving for 3 people, just imagine how many people can get what you call opportunities in India if they are able to connect to foreign countries. All these companies where they are really looking for people to deliver them on time, on quality. So this is what I wanted to tell you. So I would always try to finally close it, that don't always see that if you have a degree you are settled. It is not that. If you are having a right knowledge, yes, you are able to settle. So, and if you are able to look for skills and if you are able to market yourself, then yes, that is the place where you can earn. If you are able to market yourself on digital platform, you are able to earn 10x. So that is my final suggestion. And I would like to take leave. Thank you very much. Bye bye. Telangana community of journalists to invite me and everybody over here. I am thankful to them. Thank you, Telangana journalists. Thank you. They say that Kadri is a person of quality. He is a person who can deliver. They believe them straight away. And if you are directly going and asking that please give me this opportunity, they may not. But when they refer you saying that yes, I know him and he can deliver, without even looking at your background, your skills, they will be in a position to give you an opportunity. So that is the scope where you can actually, he can help many of his friends, your relatives, your surrounding people, referring them their skills to the companies there. Or if they are identifying any opportunity, he just give them a reference saying that yes, I know him. That gives them an easier pathway to settle down there. And the next question is whether he can call all of your family. Yes, he can call all of your family on a visitor visa, then you go there, look for opportunity, then shift on to the different visas. That scope is always there, that country is always friendly where somebody is having skills. Right, sir. बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 1 घंटा पहले मेरे को फ़ोन आया। मेरे बचपन के दोस्त है श्रीनिवास गौड़ एक्चुअली जुबली हिल्स में रहते, हार्ट अटैक आके उनका इंतकाल हो गया। तो पूरे दोस्ता वहाँ पर है। तो मैं अभिजीत का प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, मैं आके 1-2 मिनट आपसे बात करूँगा। ये जो येलो पिलो का जो प्लान है अभिजीत का, ये जब अभिजीत साहब की लड़की जिंदा थी, आज स्वर्ग में है, एंड एक बेहतरीन लड़की, अनफॉर्चुनेटली उसका इंतकाल हुआ, शी पास्ड अवे। उसका एक ख्वाब था कि एक स्कूल होना ओन, और वो ख्वाब को कंटिन्यू करते हुए हमारे अभिजीत साहब तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो अब आपका प्रोग्राम है, क्योंकि मैं इनके परिवार से करीब हूँ और इनके एक नेक कामों में, एक अच्छे कामों में कभी भी मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। और ये बहुत प्यारे और इनोवेटिव टाइप के बंदे हैं और कुछ समाज को देना चाहते। और ये जो एक क्वालिटी अभिजीत साहब के पास कि मेरे को कुछ देना है, और ईश्वर जितना भी मेरे से बुरा करना था कर दिया, अभी तो अच्छा होना है। मेरी तो औलाद नहीं है, मगर हर किसी की औलाद में अपनी औलाद को तलाश करते, ये एक अच्छी एक अदा है।
सो जब ये डिजिटल के ताल्लुक से मेरे को एक्सप्लेन करें आप येलो पिलो के बारे में, सो मैं बोला साहब आप कितना चार्ज कर रहे हैं? तो वो पलटा के बोले 3,000 रुपये, आप कुछ मदद करना फिरोज़ भाई। तो मैं पलटा के बोला क्योंकि ये डिजिटल की दुनिया है और हमारे बच्चों को एम्पावर करना है और ये फील्ड में आगे बढ़ना है। सो बोला चलिए मेरे तरफ से 1,500 रुपीज़। सो 1,500 रुपीज़ मैं दूंगा, 1,500 रुपीज़ वो लड़का या लड़की देना है। सो आप उसमें बोले मेरे को जो की पॉइंट्स बोले, पर्सनल जर्नी, हाईलाइट द पावर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट टू एम्ब्रास डिजिटल टूल्स फॉर कैरियर एडवांसमेंट, बिल्डिंग रिजिलियंस एंड सेल्फ रिलायंस थ्रू डिजिटल स्किल। ये मेरे की पॉइंट्स थे। इसके ऊपर बात करने का बहुत मन करता, वक्त का तकाजा है और सिर्फ मेरा जिस्म आपके पास है, दिल कांकी जुबली हिल्स में श्रीनना के घर पे है। तो मैं मुख्तसर रखता हूँ मेरी बात और मेरे को आप इजाज़त दीजिए। और रही बात नेक्स्ट जो भी सेमिनार होगा अपन खुल के बात करेंगे, मेरे एक्सपीरियंसेस आपको बोलूँगा। और रही बात यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, ये बात को आप आगे लिख जाइए। और येलो पिलो जो है ये प्रोग्राम आने वाली पीढ़ी को और मजबूत कर देंगी और उनको एडवांस कर देंगी और उनको कैपेबल बना देंगी। सो ये मन में रखते हुए और ये विश्वास से मैं येलो पिल्लो को टोटल सपोर्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पर भी मेरे से होता मैं सपोर्ट करते रहता। मेरी भी ज़िंदगी इस तरीके की है कि मेरे पास भी एक बेटी थी और वो बेटी आज नहीं है, राइट। 22 इयर्स की बेटी, उसका भी एक्सीडेंट में डेथ हो गया। सो अब है नहीं हमारे पास कुछ। अब जो भी है बस हमारी जो भी बची सी उम्र है जब भी, क्योंकि एक चीज़ आपको मालूम है, सामान 100 बरस का मर पल की खबर नहीं। सो कब जाना है पता नहीं, और जब तक रहना है कुछ ना कुछ नेक काम करते रहना है, कंट्रीब्यूट करते रहना है। वो ईश्वर परमात्मा अल्लाह जो भी है नवाजते रहता, तो उसको बांटते रहना है। तो ये बंदा अभिजीत मेरे पास आया, ये भी सेम हमारा पैटर्न का बंदा है। उसकी भी बेटी का इंतकाल हुआ, हमारी भी बेटी का इंतकाल हुआ, कुछ अच्छा नेक काम करना चाह रहा, तो हमारे भी मन में आया चलिए हम इनको सपोर्ट करेंगे। और एक बात तो हम बोल देंगे, ये बंदा बहुत ईमानदार है। सो आंख बंद करके इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते। और फिरोज़ खान का ताउन, जो फिरोज़ खान का ताउन है पक्का वो 1,500 रुपीज़ हम कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप आगे लेके आइए। नेक्स्ट जब होगा एक 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद, तो नए नए स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उन लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सेमिनार कंडक्ट करेंगे। उनसे पूछेंगे उनके एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, अभिजीत से एक्सपीरियंस सुनेंगे, आपसे सुनेंगे। सो आज के लिए आप मेरे को इजाज़त देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। एक्चुअली आज हम लोग 18 जनवरी को हम लोगों ने भारत डिजिटल चैम्प का लॉन्चिंग के लिए प्रोग्राम रखे थे। यहाँ पे फिरोज खान साहब आए थे एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, उन्होंने ही इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो टोटल रजिस्ट्रेशन फीस है 3,000, उनमें उनकी कंट्रीब्यूशन 1,500 बोल के उन्होंने बताया। और बताया नहीं, उन्होंने ऑलरेडी मुझे कंफर्म कर चुके हैं कि जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, हर बच्चे की तरफ से रजिस्ट्रेशन फीस का आधा उनकी तरफ से आएंगे। अब ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये पूरी कोर्स का है, इसमें 1 मंथ 2 मंथ साल भर वैसा कुछ नहीं, ये लाइफ लॉन्ग। ये कोर्स की ड्यूरेशन जो है, कंपटीशन जो चलेगा वो 1 साल तक चलने वाला है। 1 साल के अंदर 6 महीना लर्निंग रहेगा, जहां पे आपको 17 डिफरेंट स्किल सीखने की मौका मिलेगा। ये 17 डिफरेंट स्किल में आती है वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैजिक, वीडियो क्रिएशन, एनालिटिक्स, डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारे आ जाते हैं। अब इसमें कोई सा भी एक स्किल सीख लो। जैसे मान लो अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, तो आप अपने गली में भी, अपने घर से बाहर निकलोगे, आपके गली में आज के दिन में हर छोटे बिजनेस को एक वेबसाइट की जरूरत है। 10-15 हजार में अगर आप एक वेबसाइट बना के दे सकते हो, तो 5-7 हजार की कमाई उसमें आपकी हो जाती है। आप खुद अगर महीने की 5 भी कर लेते हो, तो 30-35 हजार की कमाई तो आपकी कहीं नहीं जाती।
ठीक है। तो ऐसे एक स्किल की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जब 17 स्किल आप सीख लोगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आपकी कमाई कितनी हो सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग सिखाने के तुरंत बाद ही आपको ये नहीं बोलते कि आप जाके खुद अपना काम ढूंढ लो। हम खुद आपको काम देते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, आज के दिन में हमारे पास 1800 के ऊपर क्लाइंट है, उन लोगों की काम देख के हम आपको मजबूत करते हैं कि आप पहले काम करो, समझो मार्केट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जब आपको ये सारी बात समझ में आ जाती है, देन हम आपको प्रमोट करते हैं कि आपको आपकी पहला क्लाइंट अगले 100 दिन के अंदर मिल जाए। मतलब पहली 100 दिन में आपको अपना पहला क्लाइंट मिल जाए। अगर 100 दिन में आपको पहला क्लाइंट मिल जाता है और ये जर्नी 1 साल की होती है, तो भी आपके पास 250 दिन बचते हैं। 100 दिन में पहला क्लाइंट कमाने के बाद बाकी 250 दिन के आप बेकार बैठोगे? क्या उसमें आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा? अगर हफ्ते का एक भी हम लेके चलते हैं, तब भी आपको कम से कम भी 250 दिन में 25 क्लाइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और 25 क्लाइंट का कमाई कम नहीं होता। जहां पे आज के दिन में आप बेकार हो, या अगर आप साइड हसल के हिसाब से भी लेके चल रहे हो, तो 25 क्लाइंट 5-5 हजार भी आपको दिए तो 1,25,000 साल का कमाई शुरू करने के लिए या एज ए साइड हसल ऊपर की कमाई के लिए बुरा नहीं है, मैं मानता हूं। और हुनर में सबसे बड़ी बात यह होती है, आप उसको जितना घिसोगे वो उतना चमकेगा, राइट। तो काम सीखते हुए पहली साल अगर आपको 1,00,000-1,25,000 की कमाई होती है, आगे चल के जब आप खुद काम शुरू करोगे, अपना सीखना छोड़ के आप खुद प्रोफेशनली अपना काम शुरू करोगे, आप खुद सोच सकते हो वहां पे आपकी कमाई कितनी हो सकती है। प्रेस क्लब आए हैं, दी येलो पिलो, ये डिजिटल का एक बड़ा कैंपेन है और हमारे अभिजीत साहब ये प्रोग्राम को आगे लेके जाने वाले हैं और हमारे पास आके ये एक्सप्लेन करें कि इस तरीके से मैं आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना चाहता हूँ। और आने वाला वक्त और आज का वक्त डिजिटल है और रोज़ एवरी डे और बेटर होने वाला है। तो यंग जनरेशन को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये डिजिटल में एडवांस बनाना है, एक्सपर्ट्स बनाना है और काबिल बनाना है। तो हम बोले आपका प्रपोजल क्या था, वो प्रपोजल हम आपको समझाए। आज वक्त नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे वो प्रपोजल के बारे में। तो हम बोले आप कितना चार्ज करने वाले हैं, तो बोले कि 3,000 रुपये। आप कुछ करिए फिरोज भाई। तो चलो, बच्चों का मामला है, हमारे बच्चे हैं पूरे, अपनी तो औलाद नहीं है बट हर किसी में हमारी औलाद को हम तलाश करते। सेम अभिजीत का भी एज प्रॉब्लम है, उनकी भी लड़की थी सुमेधा, आज नहीं है। मेरी भी लड़की थी तानिया, आज उन्हें नहीं है। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ हम देखते रहते, तो वो कमी तो हमारे को रहेंगी। बट हम बोले कि ओके राइट, आप बोल रहे हैं ना 3,000 रुपये, 1,500 रुपीज़ मैं ही डालता हूँ, 1,500 रुपीज़ बच्चों को डालने देइए और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप मेरे को क्या करे उसकी आप रिपोर्ट देना है पूरे प्रेस के सामने। पूरे जितने भी लोग आज मौजूद है, इनके तमाम लोगों के सामने आप एक रिपोर्ट दीजिए। अगर से आप सही काम करेंगे तो हम आपके साथ कंटिन्यू होंगे, अगर से आप काम तो भी गलत कर रहे हैं तो फिर हम डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। सो हमारे को टारगेट दिए थे हमारे भाई साहब डिजिटल में, मेरा पॉइंट्स वहाँ पे है रह साथ वहाँ ऊपर पेपर। आप टारगेट दिए थे पर्सनल जर्नी हाईलाइटिंग द पावर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकेंड है इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट टू एम्ब्रेस डिजिटल टूल्स फॉर कैरियर एडवांसमेंट, एंड थर्ड था बिल्डिंग रेजिलियंस एंड सेल्फ रिलायंस थ्रू डिजिटल स्किल। सो फ्यूचर डिजिटल स्किल का है और वो स्किल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है और वक्त की मांग है, जो अभिजीत इसको एक ब्यूटीफुल वे में द येलो पिल्लो के नाम से लेके आए हैं और इंशाल्लाह ये बेहतरीन सक्सेस जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ। जय हिंद। स्टूडेंट के लिए देखिए आप जितने भी उन्हें ला सकेंगे उतने को दूंगा, लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, जितने भी आप लाएंगे उतने दूंगा। अल्लाह देते मेरे को दौलत। वन मंथ 2 मंथ मैं 3 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट देखूंगा। अगर से अभिजीत साहब का जो डिजिटल मूवमेंट है, अगर से ये करेक्ट रहेगा
सही ट्रैक पे जाएगा और लोगों को फायदा होगा तो बराबर हम उनके साथ है, और अगर से उन्होंने कुछ गलती करेंगे तो हम डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। सर